Hello, my name is Barkha Dutt. You're watching the Mojo Story. As some of you know, for the past 16 days, like so many other Indians, I've also been battling COVID. But now I have recovered. I have also taken some time to process the grief and the loss of my own father, Speedy Dutt, whom I lost to COVID. But today, seeking his blessings, I have returned on the reporting journey through rural India, where COVID is really lighting up the hinterland. And over the next few weeks, we will continue to do what we've always done, bring you stories from the ground, reporting relentlessly on the COVID crisis before India. Now, this has been a very bleak and depressing time, and many Indians have felt abandoned by the Indian state. But it has also been a time when ordinary citizens have turned to each other for help. If you look at social networks at any time, people are just tagging each other saying, help me with an oxygen cylinder, help me with an ICU bed, help me with so and so drug. And people are coming to each other's rescue as well. In the middle of all this, while we are often disillusioned with our politicians, today we bring you the story of that rare politician, young politician, who has won hearts across the country. Not many people knew him earlier. He's a youth Congress president from Karnataka. We're talking about B.V. Srinivas. And let's bring you some of these pictures that have now come to be associated with him. At any given time, when you talk about Srinivas on Twitter, his small team of people is usually carrying an oxygen cylinder for someone or the other. It could be an embassy, which causes its own controversy. It could be a celebrity, or it could be ordinary people. In fact, people even across the political divide, although he's a Congress leader, quite interestingly, we've seen a number of right-wing ideologues also tag Srinivas on Twitter before they tag anyone in their own government and in their own officialdom. So he's really an extraordinary story. He's become a household name. And the number of big stars who are now saying, oh, when this is over, we really want to meet Srinivas. So we thought, as we broadcast to you from a small village right now, you can see where I'm sitting. I'm in a small village in the heart of Uttar Pradesh. We would take you now and bring you from Bangalore the story of Srinivas, who's become such a viral sensation. And he's told me that although he's speaking from the south of India, he wants to speak in Hindi. हिंदी में बात करना चाहते हैं श्रीनिवास जी. हाँ, तो बरकत जी, कैसे आप? आपका तबीयत कैसे? मेरा तबीयत अभी 16 दिन बाद ठीक हुआ, तो थैंक यू. और आप पूरा बताइए. पूरा देश दुखी है. आपका फादर को हो गया है इस पेंडेमिक के इसमें. हमको भी दुख हुआ, बट आपको कोविड की वजह से आपका भी बहुत सारा लोग शायद आपका स्टोरीज मिस किया. लगातार आपका लोगों के बीच में जो इस मुसीबत के जो लोग उनके हालात को आपने हमेशा दिखाया था. मैंने आपका जो 2021 में जो 23rd प्लान लॉकडाउन में आपने लगातार विलेजेस तक उन लोग का बात सुने. बहुत सारा ऐसे केसेस सामने आया था, देख के बहुत दुख हो गया था जी. और अब मैं वापस आ गई हूँ ग्राउंड पे. फादर की डेथ से सैडनेस तो हुआ, फिर कोविड हुआ, लेकिन अब मैं यूपी के गांव में वापस हूँ. अभी एक छोटे से गांव में बैठी हूँ. थैंक यू आपके विशेष के लिए. आज आपके बारे में बात करते हैं श्रीनिवास. आप कैसे इतना फेमस बन गए कि पूरा देश अब आपको जानता है कि ये श्रीनिवास जी कौन है? ये आपको पता है, लगभग 1 साल से लगातार मार्च में 2020 मार्च 1 को हम सबको राहुल गांधी जी का कॉल आया, जो वो 12 फरवरी को वो ट्वीट लगाया था. उसके बाद में मार्च 1 को हम सबको बोले ये आने वाले दिन में बहुत बड़े लेवल पे महामारी आने वाला है, आप लोग तैयार हो. तो उसके हिसाब से हम लोग ने तैयार था. जो अनप्लान लॉकडाउन हुआ 23rd, उसके बाद में माइग्रेंट लोग अपने अपने घर निकले. किस तरीके से घर निकले, तमाम चीजें आप लोग भी उस समय में ऐसा तस्वीर दिखाया था. जो प्रेग्नेंट लेडी से लेके तमाम छोटे छोटे बच्चे बिना चप्पल चल रहे थे. हम उन लोग के लिए खाना पहुंचाना, उन लोग के लिए घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करने का, इस तरीके से हम लोग ने काम कर रहे थे. उसके बाद हम लोग ने जो मार्च 7 2021 यूथ कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ दिल्ली में. वो यूथ कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी होता है. उसमें 2 दिन बैठक में कार्यकारी में जो रेजोल्यूशन पास होता है, यूथ कांग्रेस चेयरमैन ने आके, उसमें सारे स्टेट प्रेसिडेंट और सारे नेशनल ऑफिस बेरर मौजूद थे. उसके बीच में राहुल गांधी जी भी 4 घंटा थे. उसमें रेजोल्यूशन में वो पहला प्रेफरेंस दोबारा पेंडेमिक के बारे में वो जिक्र किया. पर आपका तो पूरा जिंदगी मैं देख रही हूँ पिछले कुछ हफ्ते श्रीनिवास,
ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी जिंदगी का सेंटर पीस बन गई है। कभी आपने सोचा था कि आपका पूरा लाइफ एक ऑक्सीजन देख, सिलेंडर के इर्द गिर्द घूमेगा? नहीं, ये हम कभी नहीं सोचे थे। ये पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे मेडिकल इमरजेंसी हमको आंखों के सामने देखने को मिला। पहले भी बहुत सारा स्टेट में मेरे पहले अध्यक्ष था, उस समय में भी अध्यक्ष रहा है, उनके समय में भी आपदा आया है। बट 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट कोई एक स्टेट में हुआ। पहली बार पूरा देश में ऐसा हालत हमको देखने को मिला। तो हम लोग ने जो टीम बनाया था, इस बार भी हमने 1000 लोगों का वॉलेंटियर टीम बनाए थे। उसमें टीम भी सेग्रीगेट किया था, वो हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ बेड अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग सड़क पे घूम रहे हैं एडमिशन के लिए, उन लोग के लिए हमने गाइड करते थे। फला हॉस्पिटल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, यहाँ 2 बेड अवेलेबल है, आप सीधा जल्दी वहां लेके जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या पड़ी है पिछले कुछ दिन में? देखिए, ये हम लोग के आंखों के सामने हमने जो मौत देखे है, ये कोरोना से लोग मरे नहीं है, सही समय में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, उसके वजह से लोग मरा है। वो एकदम दुखी का बात है। आपने ऑक्सीजन का जो बात किया आपने, तो पूरा दुनिया में भारत देश सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। फिर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है सही समय पे, उसके लोग मरे हैं। वो एक दुखी का बात। हमने भी केसेस, बहुत सारा केसेस हमारा पास आते थे, उसमें हमने सेग्रीगेट करते थे, क्यों तो सारे केसेस को हम मदद नहीं कर पाते। उसमें इमरजेंसी केसेस कौन सा है, उन लोग के लिए बेड कहाँ नहीं मिला, एटलीस्ट एक 4 घंटा उनको ऑक्सीजन मिले, एक सिलेंडर लेके उनको भेजो, एटलीस्ट बेड मिला तक उनको सांस लेने के लिए दिक्कत ना हो जाए, बाद में अच्छा, उसको मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप एक कांग्रेस के युवा नेता हैं, लेकिन ऐसे समय में आप क्या सिर्फ कांग्रेस वालों की मदद करते हैं कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जब वो आपको रीच आउट करते हैं, जैसे किसी ने बोला कि अशोक पंडित जी हैं, जैसे बीजेपी के जाने माने नेता हैं, उन्होंने आपको टैग किया, बहुत लोगों ने ये नोटिस किया, क्योंकि वैसे तो वो कांग्रेस को बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो ऐसे समय में आपने अपनी निजी पॉलिटिक्स कैसे दूर रखी, जब भाजपा के खुद के नेताओं ने आपको, या भाजपा के खुद के समर्थकों ने आपको टैग किया? जो हम लोग का बैठक में भी क्लियर हुआ था, उसमें राजनीति नहीं करना। तो राहुल गांधी जी ने बोला आप लोग राजनीति मत करो, दिल से सेवा करो। तो उसी हिसाब से हम लोग ने कौन पार्टी से कौन सा ये रिलीजन, ये कभी हमने देखा नहीं है। ये हमने सोचा है, लोग कोई भी मुसीबत में रहते हैं उसको मदद करना, उसके साथ खड़े रहने का है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने लोगों को, कोई भी हो, हमने पहला उसका सीरियस केस है उनको मदद करने का काम किया है। जो कुछ लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हमने उसमें ध्यान नहीं दिया, हम देगा भी नहीं। इस समय में हमारा एक जैसे जब अशोक पंडित जी हैं जो इतने कांग्रेस के खिलाफ है और उन्होंने आपको टैग किया, आपने जब नोटिस किया तो आपके मन में क्या आया? अभी शायद उनको समझ में आ गया कांग्रेस क्या है करके, शायद मैं सोचता हूँ। पर ये तो बट आपने अभी राजनीतिक कोई भी ये पार्टी आपने का, राजनीतिक स्टेटमेंट की। उसका समय में उसका क्या प्रॉब्लम है, हमने कौन कह रहे वो तो देखा नहीं है। एक जान है, छोटे मदद से एक जान बच सकते हैं, हमारा सोच वही था। तो आप ये नहीं उस समय सोचते कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, आप बस ये सोचते हैं ये इंसान है? इंसान है, अच्छा, इंसानियत ही नहीं है तो फिर इस दुनिया में फिर क्या है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड अपना हाई कमीशन को लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई भी किया कि एम्बेसी में बीमार था कोई, लेकिन उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। देखिए, ये हमारे को ऑफिशियल उनका 9:20 लगभग उस समय में उनका ऑफिशियल न्यूजीलैंड एम्बेसी से हमको टैग हो गया, यहाँ ऐसे हमारे को सिलेंडर का आवश्यकता है। तुरंत हमने देखा नहीं है, हमने तो मदद करने का कर दिया। उसके बाद में बहुत सारा टिप्पणी आया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत देश का संस्कृति है, परंपरा है। कोई भी मेहमान आते है उसको मदद करना, उसको सेवा करना, उसके साथ खड़े रहना। हमने उस एंगल से हमने उसको मदद किया है। बट उसके बाद में कुछ लोग उसके ज्यादा उसको पॉलिटिक्स भी हुआ, उसमें हमने कभी उसको लेके बयान नहीं दिया।
मेहमानों के हम्म। साथ रहना हमारा पार्टी का और संगठन का परंपरा है। इस देश का कोई भी नागरिक हो, कोई मेहमान आता है उसके साथ खड़े रहने का एक पद्धति है, परंपरा है। हमने वही किया है। और आपने अपनी मम्मी के बारे में बात की, और वो मैं सबको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ आपकी मदर की। आपने कहा कि इस सब के बीच में आपकी मदर आपको लगातार फोन करती हैं, कोशिश करती हैं देखने के लिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी देखभाल कर रहे हैं। तो अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताइए। कैन वी प्ले दैट पिक्चर अगेन? अपनी या मम्मी के या बारे में या कुछ बताइए। मेरी मेरी मदर, मैंने एक्चुअली सारे न्यूज चैनल मैंने कट किया था घर पे। हम्म। तो उनको पता नहीं था मैंने यहाँ ये काम कर रहा है। बट उनको कहीं ना कहीं उनको मेरे ऊपर ज्यादा टेंशन भी था। दिल्ली में उनको सुनने में आया बहुत ज्यादा वहाँ केसेस बढ़ चुका है। रोज पर डे 3 बार वो कॉल करते थे, पूछ रहे थे क्या है घर पे है सारे। बाद में उनको पता चल गया, वो कहीं से उनके दोस्त ने व्हाट्सएप में भेज दिया। बाद में मेरे को फोन करके वापस, ठीक है मैं कोई ये नहीं है, तुम ख्याल रखो, बट न्यूज हम्म। चैनल सारे ऑन कर दो, हम्म। बोल दो उनको। फिर बाद में मैंने सारे ऑन कर दिया। बट बहुत उनको भी डर है ना। तो मेरे को माँ को देख के मेरे को भी डर है, अभी गांव तक पहुंच रहा है। बट अभी समय में वो दुख है, उनको भी मदद कर रहा है। बट कहीं जा रहा है, शमशान घाट जा रहा है, वहां कुछ हो जाए, वहां जाने से कुछ नहीं होगा। बट हमको भी ख्याल रखने का उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, दुख रहता है उनको भी। बट मैंने हम्म। उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करके, तो हम लोग अभी इस समय में लोगों की सेवा करना है तो हमने सेवा कर रहे हैं। आज भी उनका फोन आया था, क्या है केसेस कम हो गया क्या है, पूछ रहे थे सारे। मैं हम्म। बता रहा था टेस्टिंग कम हो गया है, थोड़ा केस कम हुआ है टेस्टिंग का, बट स्टार्ट होगा तो केसेस बढ़ सकते हैं। मैंने हम्म। उनके साथ डिस्कस करा। अच्छा, इस दौरान में सबसे एक तरह से वो ऐसी कौन सी मेमोरीज आपने गैदर की हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे? जैसे कुछ फनी हुआ हो, जैसे किसी इंसान से बात हुआ हो जो आपने कभी सोचा ही ना हो कि कभी आपकी ऐसी इंसान से बात होगी। आपकी क्या एक्सपीरियंसेस आप अपने साथ लेके जा रहे हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारा इंसिडेंट हुआ उसमें, 3-4 मैं इंसिडेंट आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक एलएनजीपी के हॉस्पिटल के बाहर एक लगभग 30 साल का लड़का, उस एम्बुलेंस में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसको एडमिशन नहीं मिला था। मैं वहाँ मेडिसिन देने गए थे। बाद में मैंने उनसे मिला जाने को, मेडिसिन देने को पहले, भैया देखो तुम्हारे लिए मैंने एक जगह ऑक्सीजन बेड का व्यवस्था मैंने कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन दे के वापस आऊंगा, तुमको मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा करके बोला। ठीक है हम्म। भैया करके वो बात किया, और खुशी से बात किया। तो मैं अंदर गया, वापस आने के अंदर वो उस लड़का का मौत हो गया था। तो हम्म। वो मेरे को सबसे दुख लगा। तो हम्म। और एक केस क्या हुआ, एक ही परिवार में 2 लोग मौत हो चुका था, तीसरे हम्म। हॉस्पिटल एडमिट में था, तो चौथा, तो उसको भी कोविड हो गया, वो भी कहीं ना कहीं पीपीई लेके वो भाई को एडमिट करने आए थे। तो उनको पता नहीं है जो कोविड हो गया था वो सीरियस था, उनको पता नहीं है उनके माता पिता मर गया करके। वो हालत देखे सबसे दुख हुआ मेरे को। मैं सोच नहीं सकते उसके परिवार में किस लेवल पे वो टोटल परिवार का हालत, फिर किस तरीके से खड़े होगा वो परिवार। मैं हम्म। तो हम इमेज भी नहीं कर सकते, बहुत दुख था। और हम्म। एक परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटा बेटी थे और हस्बैंड वाइफ, चारों कोविड हो गए। में हम्म। उसका हस्बैंड बहुत सीरियस हो गया था, तो हम्म। सीरियस होके वो वेंटिलेटर में था। फिर भी वो उनके दोनों बच्चा रिकवर हो गया, बाद में उसका वाइफ रिकवर होके उसी वेंटिलेटर में रह के मैं मेरा पति को बचाना है करके वो लगातार 20 दिन के ऊपर उधर ही थे। और अभी वापस आ गया वो लोग ने। मेरे को अभी वो लास्ट 3-4 दिन के फोन आ गया मेरे पास, सारे रो रहे थे। मैंने बोला क्यों रो रहे हैं आप लोग, कौन है? नहीं नहीं, हम चारों बच के आ गए वापस, इसीलिए हम आपके लिए बात करने का था, हम बच के आ गए इसीलिए रो रहा है कर। मीन्स ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे। और एक दिल्ली प्रोफेसर है, हम्म। उनका बेटा 3 साल का बच्चा, तो मेडिकल नेग्लिजेंसी के वजह से 3 साल से वो ऑक्सीजन पे है। तो वो कोविड की वजह से उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। हम्म। तो उनके लिए हमने ये पहला दिन एक सिलेंडर लेके गया, रोज एक सिलेंडर से ज्यादा लगते थे।
फिर बाद में मैं यहाँ राहुल गांधी जी के ऑफिस में बात किया, उनको 10 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर लेके जाके उनके घर पे परमानेंट डाल दिया। बट हम्म। उस परिवार में वो लेक्चरर भी लगातार उस केस के खिलाफ लड़ रहा है। कुछ लोग ने, हॉस्पिटल वाले आके इनसे कॉम्प्रोमाइज करने आया, बट वो हिम्मत नहीं आ रही, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। बट वो छोटा बच्चा हम्म। रोज वो ऑक्सीजन से जी रहा है, बेड हम्म। के ऊपर ही नहीं, पड़े रहता है। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज रही हैं। लेकिन एक फनी फनी लेवल पे आपने कोई नए दोस्त भी बनाए? जैसे पहले, जैसे मैं कह रही थी, आजकल जैसे अशोक पंडित जी हैं या राइट विंग के लोगों ने जब आपको रीच आउट किया, तो आपको लगा कि अभी कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, अभी वो सब नहीं मैटर करता? नहीं, ऐसा बहुत सारा लोग, आपने जो नाम लिया वो खुद फोन किया था, अशोक पंडित जी ने। वो खुद फोन मैं करके उनका मेरे को ट्वीट, बता। हाँ, ट्वीट भी दिखा रही हाँ, हूँ। वो आपको फोन किए, वो बताइए क्या बात हुई फोन उनके साथ। करके मेरे को, श्रीनिवास हम्म। थैंक यू सो मच यार, आपने मदद किया करके। हम्म। मेरे को पहले यही अशोक पंडित करके पता नहीं था, बाद में पता चला मेरे को। बट चलो ठीक है, अभी इस समय में हमने भी कुछ रिएक्ट नहीं करना, अभी दिल से लोगों को मदद करना है, तो हमने हम्म। उसी एंगल से हमने मदद किया। बाद में हम्म। शायद उनको भी रियलाइज होगा, यूथ कांग्रेस ने उनके कहने पे आधा घंटे में, 1 घंटे में उनके पास कॉल गए और जो उसको मदद मिल गया। ऐसे बहुत सारा लोग, बहुत सारा पार्टी का लोग आया। उसके बाद में भी बहुत लोग ने कॉल करके मेरे से डिस्कस किया, अरे श्रीनिवास जी, यूथ कांग्रेस कर रहा है। मैंने बोला ये यूथ कांग्रेस का परंपरा है। आप बिहार में फ्लड में देखा, तब भी हमने काम कर रहे थे। उत्तराखंड में जब हुआ था तब पर मैं सेक्रेटरी। आपको लगता नहीं कि वन ऑफ द रीजंस यू आर सो पॉपुलर इज बिकॉज पीपल डोंट, आप हो कांग्रेस के नेता लेकिन लोगों को लगता है आप दिल से कर रहे हैं, आप राजनीति, इसमें राजनीति नहीं डाल रहे? हाँ, ये राजनीति हमको पहले ही, जो मैं माध्यम हूँ, एक हमारा नेता राहुल गांधी जी ने पहले क्लियरली बोल दिया, कोई राजनीति मत करो। ये पहले भी फर्स्ट में भी बोला था। हम्म। सारे कार्यकर्ता है, मैं एक श्रीनिवास काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे हजारों लोग कार्यकर्ता है। यूथ कांग्रेस का है, एनएसयूआई कांग्रेस, सब लोग कर रहे हैं। बट हमने ये नहीं सोचा है कौन अभी इस समय में क्या करना है उसको लेके। हमने कभी, हम भी प्रचार के पीछे हम लोग नहीं गए। बट जो काम होते होते लोग देखे ज्यादा, वो लोग ही खुद ही इसके बारे में चर्चा करने लगे। अच्छा, आप अपना शहर बैंगलोर के बारे में बताइए। आप ट्रैक तो कर रहे होंगे, और बैंगलोर में एक और भी युवा नेता है तेजस्वी सूर्या जी। तो राजनीति में ना जाते हुए फिर भी उन्होंने भी पहले कोशिश की कि वॉर रूम में जो करप्शन हो रही है, उन्होंने कहा उसको एक्सपोज करें, लेकिन वो एक कम्युनल इशू बन गया फिर। देखिए वो क्या कह रहा है, कुछ लोग बात करते हैं, अच्छे बात करता है, कुछ लोग बहुत सारा बयान भी देता है। बट हमने उसमें कभी, हम बयान देने में ज्यादा, हम काम पे ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। लोगों हम्म। को इस समय में कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लोग मदद चाह रहा था। तो हम्म। हमारा फोकस क्लियर था, हमने मदद करना। किसी को बारे में, किसी को पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ कहना, वो इस समय में, इस पैंडेमिक में लोग मर रहे हैं। किस तरीके से लोग 2-2 दिन अंत्यक्रिया करने के लिए एम्बुलेंस में 2-2 दिन लाइन लगे थे कर्नाटक में। ऐसे हम्म। ऐसे तस्वीर देखने को मिला। तो उन हम्म। लोग को मदद करने का ही हमारा भी मकसद था। बट वो भी हम्म। ये, हम लोग युवा लोग हैं, इस देश को मैसेज देना चाहिए, हम सब लोग एक होकर इस समय में कोरोना के खिलाफ लड़ना है। तो हम्म। स्थिति को बिगाड़ने का काम कभी नहीं करना चाहिए। और आपने, आपका सबसे एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस इस दौरान में क्या रहा है, जो आपने आपकी पर्सनालिटी ने, आप शायद आप भी अपने आप को एक नए आदमी पाएंगे आज, राइट, इतना इंटेंस एक्सपीरियंस के बाद, तो आप अपने आप को बदले हुए इंसान पाते हैं आज? या 100% मेरे को एक चीज तो, मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे ऐसे लोग, इतने बड़े लोग से लेके सोसाइटी में कुछ अचीवमेंट किया है, ऐसे ऐसे लोग भी हम लोग के सामने जो तरीके का मौत हुआ हमने देखा। तो ये सारी देखने के बाद में बहुत सारा सीखने को मिला हम लोग को भी। इस समय में कोई कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग ये है। तो उसके मेरे को एक लगा, जब तक है तब तक हम लोग ने अच्छा काम करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। पता नहीं कौन क्या
किस तरीके का इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है। लोग आज जा रहे हैं, सुबह किसी को एक्सीडेंट भी हो गया तो मौत हो जाता है। बट बहुत सारा सीखने को मिला है इस कोरोना इसमें। बहुत सारा परिवार की जो लोग ने एक लेवल तक जाके फैमिली सेटल किया था, लास्ट हम्म, एक साल से उनका परिवार का जो अभी वापस उन लोग ने उसी स्थिति पे, जो पुराना स्थिति पे आ गया, मीन्स कहीं ना कहीं देख के थोड़ा बहुत फील मैं करता हूँ। एक सोचना चाहिए सब लोग इसके बारे में। और लोग भी क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है, न्यू हम्म, जनरेशन कहीं ना कहीं मदद नहीं कर पा रहा है, वो एक मेरे को दुख है। बिल्कुल। और मैं जानती नहीं कि मैं मेरा रिसर्च ठीक है या नहीं, लेकिन मैं शायद कहीं पढ़ा कि आपका एक एस्पिरेशन था एक टाइम क्रिकेटर बनने का, और आप आ गए राजनीति में, तो उसका थोड़ा बताइए। मैं एक्चुअली ये नेशनल कॉलेज बसनगुड़ी में मैं पढ़ रहा था। तभी मैं अंडर 19 कर्नाटका स्टेट रिप्रेजेंट किया, अंडर 16 किया था, फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट खेल रहा था। जो उस समय में मेरे को कॉलेज में जो हम लोग साइड पे खड़े थे, वो नेशनल कॉलेज ग्राउंड में बहुत सारा लोग प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 10-15 क्लब। वो कहीं से मेरे को बॉल आके लग गया। बट उस समय मैं डॉक्टर के पास में जाके दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने के बाद वो रेटिना डिक्लाइड हो गया था, तो ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 साल हुआ रिकवर होने में। उसके अंदर मेरा क्रिकेट करियर में लंदन में भी माइनर काउंटी खेला था। मैं हम्म, क्रिकेट में राइलवेज में भी मेरा ये ट्रायल भी हो गया था। तो राइलवेज से रणजी ट्रॉफी खेल के आगे खेलने के लिए मैंने सोच रखा था। बट कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट की वजह से मैं आगे क्रिकेट नहीं खेल पाया। बट नेशनल कॉलेज पे तो था, मैं एनएसयूआई के साथ, लड़का लोग के साथ में हर प्रोग्राम में, हर इसमें इन्वॉल्व हो रहा था। मैं हॉस्टल में था। बाद में जो इलेक्शन सिस्टम आया राहुल गांधी जी का, जो उसमें मैं चुनाव लड़के तीसरी प्लेस आया। तो जनरल सेक्रेटरी बन के बाद में ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने 14 में। और बाद में जनरल सेक्रेटरी बना, वाइस प्रेसिडेंट बने, पर इंटरिम। आपका आपका फर्स्ट ड्रीम, अगर आप चूज कर पाते तो आप क्रिकेटर बनते और नेता नहीं बनते? नेता नहीं बनता था मैं। ऑलरेडी फर्स्ट फर्स्ट क्लास मेरे को माइनर काउंटी वहाँ ग्लासगो में एक क्लब किया, वहाँ भी क्रिकेट खेलने को भी एक ऑफर भी आया था उस समय में। बट हम्म। बहुत सारा रीजन के वजह से, बट उसी बाद मेरे को ये इंसिडेंट हुआ, मैं क्रिकेट छोड़ना पड़ा। बहुत एंड अभी में भी मैं क्रिकेट क्रिकेट अभी देखता हूँ। क्रिकेट याद हाँ, आ रही होगी, हाँ? मन लगता है। अभी इसमें भी बहुत सारा क्रिकेटर को हमने मदद करने को मौका मिला। ओ जैसे मूलचंद, कि बताए, बताओ हाँ, बताओ। मूलचंद और विहारी, तमाम और कम से कम 10-12 लोग ने रिक्वेस्ट किया। हमने पहले हमने प्लेयर तो क्रिकेट है तो थोड़ा अटैच भी रहता है, इमीडिएट हम्म, हमने रिस्पॉन्ड भी किया। और उसके बाद में बहुत सारा आर्टिकल में क्रिकेट प्लेयर करके पता चला, बहुत सारा लोगों ने फोन किया। अच्छा आप लोग, आप तो क्रिकेट प्लेयर है, क्या है, कैसे हुआ, हम्म। क्रिकेट क्यों छोड़ा। और तमाम लोगों ने डिस्कस किया। तो फिर पुराना दिन याद आ गया क्रिकेट। चले, पुराने दिन से नए दिन। एंड में बोलूंगी, आप क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आपको रोज टैग करते हैं? आप कितने ट्वीट्स खुद पढ़ते हैं, और कितने घंटे दिन में सो रहे हैं कि बिल्कुल नहीं सो रहे? देखिए अभी समय में हालत, कल भी एक बैंगलोर में प्रेग्नेंट लेडी था, तो हम्म, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। कम से कम 3:30 बजे तक हमने वहाँ का जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एडमिशन करने का सोच डिस्कस हो रहा था। कम से कम 4-5 घंटा तो सोने का मौका मिलता है। बट कोई ऐसा इमरजेंसी केस है, बहुत सीरियस है, तभी नींद से भी खुल जाता है। बट बहुत सारा ट्वीट्स आते हैं, सारे लोगों को मदद नहीं कर पाते हैं, जो तो रिसोर्स कम है हमारा पास, सरकार भी नहीं है। बट हम कोशिश करते हैं जो ज्यादा ज्यादा लोगों को मदद करें। तो ये सिलेंडर का जो ऑक्सीजन का जो बात हुआ, उसमें हम्म, तो एक व्यक्ति को एक सिलेंडर नहीं पड़ता है, तो रोटेशन होता है। हम्म। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सारे कुछ तो लोग ने कुछ पेशेंट के साथ दे दिया, वही रोटेशन होता है। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कुछ पेशेंट को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, बाद में उसी को सैनिटाइज करके फिलिंग करके दूसरे पेशेंट को देता है। मीन्स
कहीं ना कहीं से लोग भी आप कुछ करने के लिए निकले तो ऐसे भी भगवान भी रास्ता दिखा देगा, लोग भी आएगा, सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे हमने और मदद कर सकते हैं। इस देश का युवा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सारा कॉलोनी में एक ही परिवार का 3-4 लोग कहीं ना कहीं कोविड होके घर पे पड़े रहता है ट्रीटमेंट के लिए, उनको खाना कहीं से खाना नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में ये जो उस कॉलोनी का कोई भी युवा हो, उनके घर पे नहीं जाना, खाना डिस्पोजेबल पैक करके वहां कोई उनके घर के बाहर रखे तो वो लोग आके लेके जाएगा। उनको छोटा छोटा मेडिसिन का जरूरत रहता है, मेडिकल स्टोर में जाके वहां से लेके आके वहां रख दिया तो ये एक छोटा छोटा मदद बहुत मायने पड़ता है। लोग भी दुख हो गया, कोरोना हो गया तो उनको देखने का तो अलग ही एक तरीके से देखने लगे लोग। कुछ लोग ऐसे भी देखा, परिवार में मौत हो गया था, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए तक अ, मना किया है। ऐसे भी हमने देखा। हमने और ये कुछ रियल कारण के वजह से वो लोग नहीं जा पाते हैं। जैसे हम लोग के पास रिक्वेस्ट आया, उसका बेटा कहीं अब्रॉड में है, उनके घर पे 2 लोग थे, दोनों कोविड था, एक मौत हो गया। बहुत ही दुखद वक्त रहा है, लेकिन एंड में कंक्लूजन में सबसे ज्यादा मुश्किल एक लाइन में आपके लिए क्या है आज? बिगेस्ट चैलेंज? देखिए ये मेरे को ऑलरेडी हम लोग के लिए दुख क्या है, ये तीसरा वेव स्टार्ट हो गया तो और बड़ी लेवल पे जा सकता है। तो इसके लिए इनको कलेक्टिवली डिस्कशन एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ये विजनरी तौर पे सारे लोगों के साथ बैठ के ऑल लीडर्स, पार्टी लीडर के साथ भी डिस्कस करो, सारे ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, तमाम लोगों के साथ डिस्कस करके ये प्लान करके आगे किस तरीके का प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमने किस तरीके से फेस कर सकते हैं, उसके लिए हमारा होमवर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वेल, गॉड ब्लेस यू श्रीनिवास। मैं इतना कहूंगी कि लोग चाहे बीजेपी वोट करें, कांग्रेस वोट करें, कोई और पार्टी वोट करे, आज आप एक वायरल सेंसेशन है, एक नेशनल नेम है, राइट विंग से लेफ्ट विंग, सेलिब्रिटीज से नॉन सेलिब्रिटीज। गॉड ब्लेस यू। एंड में मैं आपकी मम्मी की तस्वीर दोबारा एक दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो योर मदर विल बी वरीड अबाउट यू। Srinivas, who once dreamt of being a cricketer, had an eye injury, became a politician, and today really is the symbol of hope. God bless you, Srinivas. Look after yourself and keep doing your good work. Namaskar. Thank you. आपका भी ख्याल रखिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work.